is basically on having a hands-on practice. One second. Okay, hands-on practice on the program. So just write a program. What we'll be doing today is that. So program in Unicity will be like this. Write a server socket program for client where client will accept string from user and send to server on port 2020 where the second one उसमें ऐसा होता है write a program for server which will accept string from client and will count the number of characters in the string and will return count in number. Okay, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में. So this is 1 and this is 2, both will be asked in one thing, and this question will be majorly for 10 marks. So this type of format is actually there in university examination. So 10 marks question, you have to write two different programs. One will be for client and another will be for server. Client will be accepting a string from the user and it will send to the server with port number 2020, where server, another program you have to write, where it will be accepting the string that is been sent by the client, and here your business logics comes. It will count the number of characters which are there in a string and it will return the count of exactly what is the count of that character. So what is the length of exactly the string that will be written in the format of integer back to the server. So this is a diagrammatic representation. We have to write a program for client, we have to write a program for server. First, client will be transferring, accepting some of the string and it will be sending on server with port number 2020. So that thing you have to keep in mind. You have to use the port number 2020. Now as a initial stage we are using the same system, so the name of your server will be localhost. So you can practice at home also, because your system can be a server also and your system will be working as a client also. So your name of your server will be localhost, and if you want to use another system in a LAN, you can give the IP address of the system. So that is the only change you have to give. Some people give IP address like this also. So you can give like this 192.168.6. Any number, suppose 32 is my PC's IP address. So I will be sending this to this IP address. Same way, your system client can have a different IP address compared to, suppose this is a 30 IP address. So the connection in TCP IP protocol is from one IP to the another IP. Now your client machine do not need to maintain the IP address of its machine, is individual machine. He should know the name of the system, that is the what do we call as the IP address of the server, and he should know the name of the port number which is allowing this program to get executed. So this is the basic thing you have to keep in mind whenever you go for programs like this. So this type of format you will find in a university examination, and we have to write a code for this. So we'll start from a scrap. Am I audible to everybody? Yes? Yes, sir. Okay, so are you getting everything what I am speaking now? Okay, so this type of question is asked. Basically two questions are asked for 10 marks,
and you have to write a separate programs where we'll be writing one client program and one is server program. So now this program is nothing but we are checking the length of the string that is will be transferred from one machine to another machine. So are you clear with the question what is there in front of you? Yes? Yes, everyone, are you getting the question what we will be writing a program for this type of question? Yes, any answer? Yes, sir. धनश्री ओके. प्रज्ञा प्रश्न समजला का? ऋषिकेश, इशिता, क्वेश्चन समझला ना आपला? हमें क्लाइंट के पास से कुछ तो भी Yes, स्ट्रिंग sir. लेना है. समझा. हाँ, स्ट्रिंग लेना है और वो स्ट्रिंग को सिर्फ भेजना है सर्वर के ऊपर. सर्वर उस स्ट्रिंग को लेगा, उसकी पूरी काउंट करेगा कितने उसके अंदर कैरेक्टर्स है, एंड देन आफ्टर दैट वो काउंट करने के बाद इंटीजर पीछे भेजेगा, यानी लेते समय स्ट्रिंग भेज लेगा और देते समय इंटीजर भेजेगा. नाउ विल चेक फर्स्ट what all functions are there. So we'll directly write one program. So मैं यहाँ पर echo के अंदर, this is my package, so I will be creating one program. So this is nothing a program that will be counting the number. So we'll say first we'll write a program for client and then we'll be writing a program for server. So it becomes very simple for you to understand how the process will be working. One second. So new, I'm writing one class. So I'm always give a name like client and then will be the process name. So the name of the program is client, so this will understand me that this is a program for client. Client, I will say count. This is the I want to count the number of characters, so I have given the name of a class called as a client count. Okay, so I want a public static void main function, yes. So I have clicked that one and I have said finish. So automatically the class with the public static void main will be created in front of you, and what you have to do is that you have to implement your logic into that. So we'll start from a scrap. Don't take tension of what will be happening over there. So one second, let's client count. Okay, so this is the name of my class and this is the public static void main. I will remove this comment part. So now whenever I want to do any program of connectivity, I have to import two packages. What are the name of the package? Import what? Java dot net package. IO.star. One is IO and another is network package. So java.net. One second. It's slow system. So we'll complete 2-3 programs on the same scenario, and I'm expecting that you should run it on your system, and that will be very simple for you. So we'll start with the very scrap part, and after that we'll be ending with new some 2-3 days will be requiring for, we'll be having ample number of examples which are asked in university, and it become very simple for you. Okay, so java.net package. So java.net dot star. So these all classes which are present into this package will be used here. Okay, and second one is import java dot io package. So I want that io package, so I am using java dot io dot star. Okay, so these packages are required for me, so I have written this one. So what all things are required? I require buffered reader. So buffered reader, because I want to accept some string or from the user. So buffered reader br is equal to new buffered reader into bracket new input stream reader into bracket system dot in, and that's it. So this is one thing I will be using. So system dot in, there is no need to write two brackets. Okay, so this is a buffer reader I required. I required the name of a server, so string, so I will say server. So what is the name of my server? So I will give the name of my server as localhost. So localhost, and what is the port number I want to work on it? So it is an integer, so port number will be what port number I have said? 2020 na? It's 2020. Okay, so 2020 is my port number, so integer. So these are the basic needs what I require. Okay, so now I want to create an object of a socket. So tell me how it is created. Yes, socket s is equal to new socket. Yes, sir. Okay, and you have to pass two parameter into this.
First one is a name of a server, and second one the name of the port to whom I want to connect. Okay. Then next one, I will be entering something. So system dot out dot println, so print enter string to check length of characters. So I will be asking the user to enter some string for checking, and I will store it in one variable, so string. So I will say txt text is equal to br, that is buffer reader dot read line, and so that will be reading that content, and that will be stored in front of you. So that is println, so it will be on separate line, and I will say something, some colon, so that will be accepting some here. So br dot read line will be there. What is the error? I want to check it. So throws is required. So whenever I am using unknown host exception is required, an IO exception. So automatically I am not writing into try class, I am directly using throw clause. So you know that this is one exception being thrown by the socket, and IO exception being thrown by this buffer reader. So now I want to send something to this. So my step number 1. So we'll call it this as step 1 because you are creating the object of a socket. Okay. Now step number 2. Now step number 2 is here. You are accepting something from the user. So step 2. And step number 3, I will be sending something. So sending string to server. Okay, so how to send? So it is very, I want to give it, don't want to take it. So it is input stream or output stream. Then I am sending my text, this text, this whatever the text that person enters. So input stream will be used or output stream? Yes, any example? Okay. Input stream, sir. No. I am sending this, so it should be an output stream. You have to keep it in mind. Output. Okay, Okay. it is output stream. I am sending out from my program, just like this. I am sending out. So the text which is accepted here. So anyone is, if is saying hi hello, so hi hello is a text that will be sent from your machine into, from client machine to the server machine. So here it will be sending here in this direction. So it is getting out of your program. So I have to use output stream. So OS is equal to, and this is an abstract, so you cannot create directly, so you have to use the object of socket. So S dot get output stream, full stop. And now you have to use upper class, because this is abstract class, cannot do directly work, you need to have an upper classes. So data, it is again output stream, you have to use output stream DOS, I will say DOS, that is data output stream, is equal to, now it is in class, so you have to use new keyword. So data output stream, and into this I have to pass this object of this output stream. So OS we need to be passed over here as a parameter. So that will be binding this two classes with one another. Okay, just like we have done in this buffer reader. We have written external classes, we have written something class like this. So inner classes are low level classes and outer classes are high level classes. So high level classes will be working for you, not a low level classes. Low level classes will be accepting from the console and it will be converting into buffer text, and that will be used as a BR. Same way here we are using data output stream. Now there are different function of data output stream. We will check it what all functions are there. So on command prompt I will check what all functions are there that can help me to send my text from one location to the another location. So you have to check each and every time. So CMD is just, okay, I have to open it. Okay, so here you can check it very simply. Is you have to use Java P, then there is a package called as a java.io package, because this function, this class, that is data output stream, is in a package called as IO package. So IO dot data
output stream, stream. Don't make change in the name of a class. So when I use this, you will find all functions for the purpose of sending something. So you can write a boolean also. That means you can transfer a boolean value, you can transfer a byte value, you can transfer a short value, character value, integer value, long value, float, double, byte, char. And you cannot transfer text, that there is no write string. So you have to use write UTF. So you can write all data types on this data output stream. So that is nothing but data output stream. So it supports all data types: boolean, byte, short, character, integer, long, float, double, byte, char, and UTF. UTF is written in uppercase, so it means you can transfer your string into this location. So I will be transferring a string like this using a write UTF. So DOS, that is data output stream dot write UTF. That's it. And you have to transfer the string what you want to transfer. So I have accepted that this into the txt, so I will be transferring this into txt. Okay, now your work of sending is completed. Now after that, what your program says, after sending this you have to receive, you will be getting the count from the server, and that count you have to display. This means you will be receiving, you are sending text, just like this, hi, hello, and the end you will be receiving a count. So this is the count is what, 1 2 3. So it will be the integer value, some count. So there is how many characters, 1 2 third is a space, 4th 5 6 7 8. So 8 will be the return value from your server back to your client. So whenever you are using like this, whenever you are using like this, you will be sending a text and you are receiving the integer. So here it will be very important that you need to understand the different types of functions. So this is for the write. If you want to accept it, is nothing but data input. So for input stream, you will find same type of functions are there. So just like this, there was write integer, write long, float, double. Same way there is a read short, read character, read integer, read float, read double, then read line, read UTF. So you can use this read and write function. So whenever you are writing something, it is data output stream, and whenever you are reading something, it is data input stream. So that thing you have to keep in mind whenever you go for programming. So we'll switch to the program. Now here I have sent output stream, means I will be writing something on my stream that will be sent on the server, and after that, this is step number what is called as a 4, that will be response received from your server. So that will be a response. So response will be accepted using your input stream. What is it? Here I am sending something, so it is output stream. Here I am accepting something, so it is input stream. So these are the stream classes you have to use. So is, again same way, I have to use this socket object s dot get input stream into bracket data input stream DIS. So here there is a DOS, that is data OS, and say it is input, so DIS. So it becomes very simple for me to understand what is that. So new data input stream, and I have to bind this small class, that is low level class. So I have to pass this object, that is input stream object, into this class. Always make a habit that you should write a clear object name. Don't write OS into IS. Okay. So it is data input stream DIS. That's it. What is an error here? Okay, it is equal to sign. Okay. Now I have received this one, and I will be storing this value whenever I am reading something. So it is always data type. See here I am sending something, it is always void. But when I am reading something, so I want to read integer, so it will be return type will be integer. So here you have to check the return type. So here the return type is, whenever I read, it is returning an integer value, but whenever I am sending something, writing something, so there is always a void value. So I am not catching it, I am just sending it. So there is no return type over here. So I have to use this int result. So I will do result. So dis dot read
int, because I will be you reading the integer values from this. So that's it, and I will be displaying the output like this by using system dot out dot print, and this will be in a text format. So print ln, I want to this. So response from server, that is count length, counted length of string. So that's it, that will be displayed by saying plus sign, and that is your result. So result will be displayed in front of you, and will be at the end will be closing this socket. So s dot close will be used for closing the socket. My task is completed as far as client is completed. Are you clear with this, what we have done? This is my step number 5, closing socket, because my task is over, so socket is closed. So are you clear with this program, what we have written here? Yes, yes, any doubt? Yes, yes, बोलो. No, sir. सबको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तभी हाँ आगे जाने में मजा है. ओके Yes, sir. ओके परत सांगा सर. परत सांगा सर. बर. देखो हमें ये क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमें 2 प्रोग्राम लिखने हैं. एक क्लाइंट में, क्लाइंट यूज़र के पास से कुछ टेक्स्ट लेगा और वो सर्वर को भेजेगा. सर्वर के पोर्ट नंबर 2020 के ऊपर वो स्ट्रिंग भेजेगा. मेरा जो बिजनेस लॉजिक है, ये बिजनेस लॉजिक पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है. पूरा बिजनेस लॉजिक विल बी रिटर्न ईयर इट विल बी काउंटिंग. यहाँ पर वो काउंट करेगा, उसने जो कितने कैरेक्टर भेजे उसको वो काउंट करेगा और रिटर्न करेगा नंबर. अगर मैंने हाय हेलो भेजा है तो मुझे वो काउंट करके इस क्लाइंट के ऊपर भेज देगा कि उसने कितने कैरेक्टर्स उस यूज़र ने उसके अंदर डाले हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम. नाउ बिजनेस लॉजिक जो है क्लाइंट ने लिखना नहीं, क्लाइंट ने सिर्फ एक्सेप्ट करनी है वैल्यू और सर्वर को भेजना है. नाउ दिस इज अ हेडेक ऑफ सर्वर. उसके अंदर आपको लॉजिक लिखना है कि जो वो एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट करेगा और वो फिर से पीछे भेजेगा कितने नंबर के कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स उसने भेजे. तो फॉर दैट पर्पस आपको क्लाइंट को क्या पता होना चाहिए? क्लाइंट को पता होना चाहिए सर्वर का नाम, क्लाइंट को पता होना चाहिए सर्वर का कौन सा पोर्ट उसके काम के लिए अवेलेबल है. तो ये 2 चीज़ें क्लाइंट को पता होनी चाहिए. और जब भी हम कोई क्लाइंट का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है सॉकेट की, क्योंकि सॉकेट के बगैर तो कनेक्टिविटी होने वाली नहीं. सॉकेट, ये जो क्लाइंट का सॉकेट है ये 2 पैरामीटराइज्ड क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. आप ये फर्स्ट पैरामीटर होता है आपको सर्वर का नाम पता होना चाहिए, और सेकंड वन उसका कौन सा पोर्ट उस काम के लिए डेडिकेटेड करके रखा हुआ है. दिस इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 में आपने जो स्ट्रिंग आपको भेजना है वो आपने एक्सेप्ट कर दी है, वो आपने यहाँ पर एक्सेप्ट करके एक वेरिएबल के अंदर रखा है. द नेम ऑफ द वेरिएबल इज txt. नाउ आपका काम है कि आपको ये टेक्स्ट है सर्वर को भेजना है. नाउ भेजने के लिए आपके पास सर्वर का ऑब्जेक्ट रेडी है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा. और सिर्फ सॉकेट पे भेजने के लिए आपको आईओ पैकेज में जो कुछ क्लासेस है, लो लेवल और हाई लेवल क्लासेस, वो आपके लिए काम करेंगे ये सब कुछ डेटा को बाइंड करके सर्वर के ऊपर नेटवर्क में भेजने के लिए. सो 2 क्लासेस यूज़ की जाती है, एक लो लेवल क्लास होती है, एक हाई लेवल क्लास होती है. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज आप जब भी नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं ये हाई लेवल का ऑब्जेक्ट का काम नहीं होता, ये लो लेवल का काम होता है. तो हमें ये लो लेवल के क्लासेस यूज़ करना पड़ता है. नाउ दिस इज अ पेरेंट क्लास, दिस इज पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी आउटपुट स्ट्रीम को लेके ही आगे जाके डेटा आउटपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम, बहुत सारे क्लासेस आपको जनरेट हुए. ये दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. दिस इज अ पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द हायरार्की ऑफ डेटा आउटपुट स्ट्रीम. तो इसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. नाउ दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो आप उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. सो यू विल बी यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सॉकेट, जो आपने सॉकेट बनाया, क्योंकि सॉकेट के अंदर सब इन्फॉर्मेशन है, कौन सा सर्वर कौन सा पोर्ट. आपने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया. अभी ये ऑब्जेक्ट रेडी हो सकता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए. सो आपने उसके लिए हाई लेवल क्लास यूज़ की, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, उसका ऑब्जेक्ट का नाम है DOS, और उसको हमने न्यू कीवर्ड से हमने उसको जनरेट किया है और उसके अंदर इसको बाइंड कर दिया है OS को. कैसे? उसको पैरामीटर में हमने उसको भेज दिया. नाउ डेटा आउटपुट स्ट्रीम के कुछ फंक्शंस होते हैं जो लिखने के काम के लिए आते हैं. तो हमें स्ट्रिंग भेजना है, सो वी आर यूजिंग राइट UTF. अगर हमें इंटीजर भेजना होगा तो हम विल बी यूजिंग राइट इंट. अगर कैरेक्टर भेजना है राइट कैर. सेम
हर एक चीज़ को हम हर एक डेटा टाइप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। सो हम यहाँ पर टेक्स्ट भेज रहे हैं, सो आई विल बी यूजिंग UTF, दैट इज़ यूनिफॉर्म टेक्स्ट फॉर्मेट, जहाँ पर कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नंबर कुछ भी आप भेज सकते हैं। और हमने वो टेक्स्ट जो हमने एक्सेप्ट किया है वो उसको भेज दिया। अब ये डेटा आउटपुट स्ट्रीम का हेडेक है, वो सॉकेट का यूज़ करके इस सर्वर के ऊपर इस पोर्ट के थ्रू वो कनेक्शन के थ्रू भेज देगा। नाउ आफ्टर कनेक्ट ट्रांसफरिंग दिस, वो सर्वर के पास एक्सेप्ट होने के बाद वो उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट होने के बाद वो भेज देगा कुछ रिप्लाई, जैसे हमने डायग्राम में बोला, उसने उसका वर्कआउट किया, उसने फिर से भेज दिया। जब तक इसका काम खत्म नहीं होता, किसका काम, जब तक इनपुट स्ट्रीम को कुछ मिलता नहीं तब तक ये प्रोग्राम टर्मिनेट होने वाला नहीं है, ये रुकेगा जब तक उसको सर्वर, बिकॉज दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जब तक कनेक्शन काम खत्म नहीं होता तब तक कनेक्शन लॉस नहीं होगा। दिस इज एश्योर्ड, दिस इज रिलायबल कनेक्शन, जिसको हम TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू यूज़ करते हैं। सो जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक हमारा ये प्रोग्राम, दैट इज़ क्लाइंट का प्रोग्राम, कभी टर्मिनेट नहीं होगा। सो हमें अभी लेना है, कुछ जो भी आएगा हमें इस क्लाइंट सर्वर की तरफ से, कुछ भी क्लाइंट की तरफ जो आने वाला है हमें उसको कैच करना पड़ेगा। सो वी आर यूजिंग दिस क्लास कॉल्ड एज इनपुट स्ट्रीम। जिस तरीके से हमने भेजने के लिए आउटपुट स्ट्रीम यूज़ की है, उस तरीके से लेने के लिए हमें इनपुट स्ट्रीम यूज़ करनी पड़ती है। सो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हम बना रहे सेम तरीके से यूजिंग अ सॉकेट ऑब्जेक्ट। दिस लो लेवल क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उसको हाई लेवल में हमें यूज़ करना पड़ता है हमारे रेगुलर प्रोग्रामिंग में। सो हमने डेटा आउटपुट स्ट्रीम नाम की एक हायर लेवल क्लास यूज़ की है, उसका ऑब्जेक्ट का नाम है DIS, और उसको हमने बाइंड कर दिया क्योंकि उसके अंदर हमने पैरामीटर भेज दिया। ना हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, सो दिस रीड इंटीजर, और जब भी हम कुछ रीड करते तो 100% वो हमें जब भी चीज़ आती तो हमें उसको लोकल वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। राइट करते समय हमें लोकल वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती है, जब भी हम रीड करते हैं तो हमें कहाँ पर तो भी उसको स्टोर करना पड़ेगा रीड करने के बाद। तो हमने एक वेरिएबल यूज़ किया, बिकॉज इंटीजर को रीड करें तो हमने उसको एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा। और ये काम होने के बाद हम डिस्प्ले करेंगे कि हमने जो स्ट्रिंग भेजी थी यूज़र ने, वो उसका काउंट कितना आया है, यानी एग्जैक्टली कितने नंबर के कैरेक्टर, कितने नंबर कैरेक्टर्स उसके अंदर थे, उतना हमने काम कर दिया। एंड फाइनली हमारा काम खत्म हो चुका है, तो हमने सॉकेट को क्लोज कर दिया। आप DOS को भी कर सकते हैं, दैट इज डेटा इनपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज, आपको ये भी करना बहुत ज़रूरी है। डेटा आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली सॉकेट को क्लोज करना ज़रूरी है। आपको इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, सो उसको हम क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। सो आर यू क्लियर विद दिस नाउ? यस, everyone is clear? Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. okay, now Yes, sir. okay, we'll be writing another program for counting. अब बिजनेस लॉजिक हम किसके अंदर लिखेंगे, सर्वर के अंदर। सो न्यू विल बी राइटिंग वन क्लास, अब इसका नाम हम देंगे सर्वर, और उसको हम वही बाइंड करेंगे, नाम देंगे काउंट, क्योंकि हमें ध्यान में आना चाहिए कि कौन सा सर्वर किसको काउंट करेगा। सो SERVER, सो दिस इज सर्वर काउंट। अब उसके अंदर मुझे मेन फंक्शन चाहिए, तो मैंने बोल दिया यस। सो ओके, सो दिस इज काउंट सर्वर इज रेडी इन फ्रंट ऑफ मी। और जब भी कनेक्शन का प्रोग्राम करना पड़ता है, सो आई हैव टू यूज़ इम्पोर्ट जावा डॉट नेट पैकेज, मुझे यूज़ करना पड़ता है हमेशा। सो आई हैव टू यूज़ डॉट नेट पैकेज। और मुझे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करना है, तो उसके लिए आई हैव टू यूज़ इम्पोर्ट दिस पैकेज। सो इम्पोर्ट जावा डॉट IO डॉट स्टार पैकेज, आई हैव टू इम्पोर्ट दिस इनटू माय प्रोग्राम। सो दैट्स इट, यू हैव टू डू टू थिंग्स, कि दो पैकेज को आपको यूज़ करना है। ना यहाँ पर मुझे बफर रीडर की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर मुझे क्लाइंट की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक ज़रूरत है कि मुझे कौन सा पोर्ट काम करने वाला। सो इट्स माई पोर्ट, मैं ऐसा नाम देता हूँ, इट्स माई पोर्ट, यानी सर्वर का खुद का पोर्ट है। सो मैं बोलता हूँ इट इज़ एन इंटीजर। सो मैंने जैसे यहाँ पर प्रोग्राम में बोला कि मेरा पोर्ट नंबर 2020 बोला है, क्लाइंट के मशीन में भी बोला है कि लोकल होस्ट है, और मेरा पोर्ट नंबर सर्वर का 2020 काम करने वाला है। ये पोर्ट किसका है, सर्वर का पोर्ट है, ध्यान में रखना है, दिस इज पोर्ट ऑफ सर्वर नॉट ऑफ क्लाइंट। तो मैं थोड़ा यहाँ पर चेंज करता हूँ, इट इज़ सर्वर पोर्ट नाम देता हूँ उसको, क्या देता हूँ, सर्वर पोर्ट, तो आपके ध्यान में आ जाएगा। हाँ ओके, सो ये सर्वर का नाम है और ये सर्वर का पोर्ट है। या नाम यहाँ पर बोलता है मैं सर्वर हूँ, तो मेरा पोर्ट नंबर होगा 2020। ओके, सो मुझे सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा पोर्ट है, मुझे मेरे नाम की ज़रूरत नहीं। नाउ मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि मैं सर्वर हूँ, तो मुझे मेरे नाम की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ मेरा पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। अब मैं करना क्या है, मुझे जो भी आने वाला है मुझे वो लेना है। सो माई स्टेप नंबर 1, सो आई हैव टू क्रिएट फर्स्ट सॉकेट। सो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, आई हैव टू क्रिएट सॉकेट। सो यहाँ का सॉकेट थोड़ा अलग होता है, आपको मैंने उसी दिन बताया था, ये आपको जब भी सॉकेट बनाना पड़ता है तो आपको सर्वर का सॉकेट थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर होता है सर्वर सॉकेट, क्या होता है, सर्वर सॉकेट। सर्वर सॉकेट SS इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट
और हमें इसको पैरामीटर देना पड़ता है कि उसका कौन सा पोर्ट काम करने वाला है उसके लिए। सो दिस इज माई पोर्ट, ऐसा मैं उसके अंदर बोल देता हूँ कि ये पोर्ट उस काम के लिए रेडी रहेगा। ओके, अभी ये क्यों एरर आया, बिकॉज मेरे को एक्सेप्शन ऐड करने पड़ेंगे। सो आईओ एक्सेप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ सॉकेट एस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर सिर्फ मैं एक देखता हूँ कि हमें जब भी कोई सॉकेट बना रहे तो वो हमें वाइल लूप के अंदर लिखना पड़ता है। ये क्यों मैं आपको बताता हूँ। अब मैं एक यहाँ पर मैसेज भेज देता हूँ, सिस्टम, 1 सेकेंड, मेरे को एक कॉल है, 1 सेकेंड, तब तक आप ये कोड को रीड करो एक बार। ओके, नाउ सिस्टम, आपको बताना पड़ेगा सर्वर चालू हो चुका है, बिकॉज एज सुन एज दिस कमांड गेट एग्जीक्यूटेड सर्वर विल स्टार्ट। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हम यहाँ पर बोलेंगे सर्वर स्टार्टेड। तो ये मैसेज हमें दिखना चाहिए। हाँ हेलो, हाँ हेलो, बोला किती काय काम झालं, काय प्रॉब्लेम, बरं बरं करा म्हणा, किती वेळ लागेल, बरं थांबणार आहे का तुम्ही, बरं आता ATM आणलं ना प्रत्येकने, पाठवतो मी पैसे। Okay, so I have to give some message here. So server started, ऐसा मैं भेज देता हूँ। So I am using dot dot star star over there, server started। तो सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, and one exclamatory sign, that's it। Now whenever I am creating a server will always remain alive। आप उसको काम होने के बाद, क्लाइंट का काम होने के बाद सर्वर कभी बंद नहीं होता, सर्वर हमेशा चालू होता है। सो फॉर दैट पर्पज आई हैव टू यूज अ वाइल लूप विद ट्रू कंडीशन। ट्रू कंडीशन यानी क्या, इट इज फॉल्स, कभी फॉल्स नहीं होने वाले। तो उस सिचुएशन में हम इस प्रोग्राम को पूरा सर्वर कंटिन्यूस चालू रखेंगे जब तक हम एक्सप्लिसिटली उसको बंद नहीं करते। ना यहाँ पर आपको सॉकेट बनाना पड़ता है। सॉकेट एस इज इक्वल टू सर्वर सॉकेट। ये देखो यहाँ का सॉकेट अलग था, क्लाइंट में सॉकेट हम कैसे बनाया था, सॉकेट एस इज इक्वल टू न्यू सॉकेट हमने बनाया था, पर यहाँ पर वैसे नहीं। यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा एक्सेप्ट फंक्शन। सो डॉट एक्सेप्ट, नाउ यूर यूजिंग सॉकेट का एस ऑब्जेक्ट का नाम है, और सर एस एस मतलब क्या, इट इज सर्वर सॉकेट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज एस एस, सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट। जैसे उसको एक्सेप्ट होता है इट विल बी गेटिंग कनेक्टेड टू दैट, और वो एक्सेप्ट करेगा। सो अभी ये कनेक्शन हो चुका है। अभी क्लाइंट जो भी भेजने वाला है, जैसे अभी ये कनेक्ट होने के बाद इमीडिएटली ये जो वैल्यूज़ आपने ली थी वो आउटपुट स्ट्रीम से ट्रांसफ़र होंगी और यहाँ पर वो आ जाएंगी। तो यहाँ पर आने के बाद ये आउटपुट स्ट्रीम रहेगा कि इनपुट स्ट्रीम से हम वो कैच करेंगे जो उन्होंने टेक्स्ट भेजा है क्लाइंट ने, एनीवन। जैसे आउटपुट स्ट्रीम ने, हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट भेजा है क्लाइंट से सर्वर के ऊपर, तो सर्वर उसको कैच कैसे करेगा, बाय यूजिंग इनपुट। हाँ, इनपुट स्ट्रीम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज इनपुट स्ट्रीम IS, मैं वही ऑब्जेक्ट यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो हियर द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ, नाउ हियर आई एम यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सॉकेट, नॉट ऑफ सर्वर सॉकेट। सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट सिर्फ सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इनपुट स्ट्रीम के लिए जो भी हम कर यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ सॉकेट को ही यूज़ करेंगे। सो सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, एंड दैट इज डेटा इनपुट स्ट्रीम, that is DIS is equal to new data input stream, एंड इनटू ब्रैकेट बाइंड करना है मुझे, तो उसके अंदर लिखना पड़ेगा इनपुट स्ट्रीम। यानी ये पहले ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को मैंने अभी बाइंड कर दिया, यानी दोनों लाइन अभी क्लियर हो चुकी है। एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी रीडिंग समथिंग। इनपुट स्ट्रीम मतलब क्या, रीड कर रहे हैं हम। सो यार विल बी इंटीजर वैल्यू, क्योंकि मैं रीड कर रहा हूँ इसका मतलब मेरे पास वो होना चाहिए वेरिएबल स्टोर करने के लिए। सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो DIS डॉट रीड, वो स्ट्रिंग भेज रहा है तो मुझे स्ट्रिंग में ही स्टोर करना पड़ेगा। सो स्ट्रिंग रीड
UTF, और यहाँ पर मैंने गलती से क्या बोला है, देखो यहाँ पर एरर आ जाएंगे बिकॉज मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया. इट शुड नॉट बी इंटीजर, इट शुड बी स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने UTF जब भी भेज रहा है इसका मतलब वो स्ट्रिंग भेज रहा है, तो स्ट्रिंग में ही स्टोर करना पड़ेगा. सी द एरर इज रिमूव. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ स्टेप नंबर 2. ये हमने जो बनाया दिस इज स्टेप 2, दैट इज एक्सेप्टिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट. तो एक रिक्वेस्ट हो सकती है, 10 क्लाइंट हो सकते हैं, 100 क्लाइंट हो सकते हैं, तो हर बार वो हर एक को एक्सेप्ट करेगा, उतना इंडिविजुअल थ्रेड बनाएगा. दिस इज स्टेप नंबर 3. so that will be accepting values from client. अब ये मैंने लिया है और अभी मुझे ऑपरेशन करना है, यानी एग्जैक्टली मेरा बिजनेस लॉजिक है. तो स्टेप नंबर 4 माय बिजनेस लॉजिक. तो मेरा बिजनेस लॉजिक क्या यूज़ करना है मुझे, तो मुझे ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है एक इंटीजर के अंदर. सो बहुत सिंपल है. आई विल बी यूजिंग इंटीजर काउंट नाम का एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ, इज इक्वल टू जो भी मैंने वैल्यूज़ में आए हैं, दैट इज़ वैल्यू डॉट लेंथ. देखो लेंथ नाम का फंक्शन है, सो दैट्स इट. सो आई विल बी गेटिंग द लेंथ इनटू इंटीजर एंड दैट विल बी स्टोर्ड इनटू दिस. नाउ स्टेप नंबर 5, अभी मेरे पास इंटीजर आया, मुझे इसको भेजना है फिर से, क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग आया था, अभी मेरे पास नंबर आया है उसका एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स है, अभी मुझे इसको भेजना है. सो आई विल बी यूजिंग स्टेप नंबर 5 एंड इनटू दिस स्टेप आई विल बी यूजिंग, अभी मुझे भेजना है तो मुझे इनपुट स्ट्रीम चाहिए कि आउटपुट स्ट्रीम. यस, Output stream. यस आउटपुट स्ट्रीम. OS इज इक्वल टू सॉकेट का ऑब्जेक्ट यूज करना है, सॉकेट डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम. ये इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बनाए. एंड देन देयर इज डेटा आउटपुट स्ट्रीम DOS is equal to new data output stream, और उसको बाइंड करना है. सो आई विल बी बाइंडिंग इट इनटू OS, दैट इज आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट को मैंने बाइंड कर दिया. ये ध्यान में रखना है, IS नहीं यूज़ करना है, OS का ऑब्जेक्ट को हम बाइंड कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है, गलती छोटी छोटी होती है. नाउ आई एम राइटिंग समथिंग, सो डेटा आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट. नाउ आई वांट टू सेंड इंटीजर, सो आई विल बी यूजिंग राइट इंट नाम का एक फंक्शन मैंने इसको भेजूंगा, और उसके अंदर मुझे क्या भेजना है, ये काउंट भेजना है. सो आई विल बी यूजिंग दिस वेरिएबल कॉल्ड एज अ काउंट. ये सिंपल हो चुका है. एंड नाउ आफ्टर दैट आई विल बी क्लोजिंग. इमीडिएट मेरा काम हो चुका है, तो सॉकेट को मैं क्लोज करूंगा, क्योंकि सॉकेट जो है ये आपको क्लोज करना पड़ता है. सो फिर डेटा इनपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज, डेटा आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज, एंड फाइनली सॉकेट डॉट क्लोज. क्योंकि आपका काम हो चुका है, तो वो सॉकेट को फिर से खुला रखने में कोई मज़ा नहीं. ओके, so are you clear with this one? This is step number 6. You have to close everything. This is you are sending count to client. Now yes, are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मेरे को अभी अभी रन कैसे करना है. सो सबसे पहले रन करना पड़ता है सर्वर को. किसको? सर्वर को. सो हम पहले सर्वर को रन करेंगे, देखेंगे अभी रन हो रहा है क्या. मैसेज आ जाएंगे हमें सर्वर स्टार्टेड, देखते हैं. देखो सर्वर स्टार्ट हो चुका है. अब मैं क्लाइंट के प्रोग्राम को क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा क्लाइंट का प्रोग्राम है. देखो क्लाइंट, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन जावा प्रोग्राम. अभी क्लाइंट का एक्स यहाँ पर ओपन हो, देखो एंटर कैरेक्टर. अब मैं यहाँ पर बोलता है हाय हेलो हाउ आर यू, इतना मैंने डाल दिया और कुछ तो एक्सक्लेमेशन मार दिया. ओके, और मैं एंटर कर रहा हूँ. देखो इट इज़ गिविंग मी द काउंट. सर्वर तो अपने तरीके से चालू है. देखो ये सर्वर है, सर्वर को कुछ सिर्फ चालू है, उसने कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि उसका प्रोसेस चल रहा है. पर क्लाइंट के ऊपर मैंने क्वेश्चन भेज दिया और मेरे को आंसर मिल गया. चलो मैं फिर से एक बार रन कर रहा हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है. मैं और एक बार सर्वर क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट का काम खत्म हुआ, क्लाइंट बंद हो चुका है. पर देखो सर्वर अभी भी चालू है. सी सर्वर स्टिल इज़ वर्किंग. जब मैं काउंट की क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट का काम खत्म हो गया, क्लाइंट खत्म हो चुका है ना. फिर से एक बार मैं क्लाइंट को रन कर रहा हूँ, रन, एंड आई एम सेइंग. अब मैं क्या करता हूँ, इसमें और एक डालता हूँ 1 2 3, सपोज 1 2 3 4 5 6. देखता है काउंट कितना आता है. देखो 6 इज द काउंट. आर यू क्लियर विद दिस आउटपुट नाउ? Yes, sir. Yes.
सबको समझ में आया कैसे हो रहा है? देखो सर्वर बंद नहीं किया, सर्वर चालू है अभी भी, इट इज स्टिल वर्किंग, सर्वर स्टार्टेड, ये बंद नहीं है, पर हमको क्लाइंट को रन कर रहे हैं, और एक बार रन करना है, और एक बार रन कर रहे हैं, रन, क्लाइंट को रन कर रहे हैं, देखो रन है यानी यहाँ पर चालू है, एंड इट एक्सेप्टिंग समथिंग। देखो जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करता तब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा। सो आई एम सेंडिंग सपोज ABCDEFGHI then space JKLMNOPQRSTUVWXYNZ, 26 characters plus 1 space. Output should be 27 character. We'll check it. Yes, I am getting output 27. That's it. Yes, everyone clear with this question? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. अभी दूसरा प्रोग्राम हमें करना है। क्या करना है अभी दूसरा प्रोग्राम? मैं इसको थोड़ा कॉपी करके रख देता हूँ क्योंकि मेरे को अभी ये आपको शेयर करना पड़ेगा। सो आई एम कॉपिंग दिस Ctrl+A+C एंड आई एम कॉपिंग इट इनटू वन ऑफ द नोटपैड, सपोज लाइक दिस, क्योंकि मुझे इसको पेस्ट करना पड़ेगा। इसमें ही थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हम नया क्वेश्चन भी निकालेंगे। सो फाइल न्यू, उसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, दिस इज माई क्लाइंट प्रोग्राम एंड दिस इज माई सर्वर प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपको करना है, इसको सेव कर देता हूँ मैं टॉप। वन सेकेंड। अभी न्यू क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड आई वॉन्ट टू रिवर्स दैट स्ट्रिंग। क्या करना है मुझे? जो भी स्ट्रिंग मैं भेजूंगा वो मुझे उसको उल्टा करके भेजना है क्लाइंट को। यस, कैसे करेंगे बोलो? बोलो। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिया है क्लाइंट के प्रोग्राम में, सर्वर का पोर्ट वही है। अभी मैं सर्वर को क्लोज कर देता थोड़ा सा, थोड़ा सा सर्वर को क्लोज कर दे, वही पोर्ट। अभी सर्वर का यही प्रोग्राम है, बफर से कुछ लेना है और कैरेक्टर्स लेने हैं मुझे और उसको रिवर्स करना है। चेक लेंथ नहीं, मुझे चेक का रिवर्स करना है, एंटर स्ट्रिंग टू रिवर्स। ओके, मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मैं वो टेक्स्ट को ले लूँगा, आउटपुट स्ट्रीम से उसे भेज दूंगा क्लाइंट के सर्वर के ऊपर, और सर्वर के ऊपर से मेरे को जो भी आउटपुट आ जाएगा दैट विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग, और इट इज़ विल बी रीड रीड, इट विल बी रीड UTF, ये आ चुका है। और मैं आउटपुट दिखाऊंगा रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, दैट इज रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग। बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है मुझे। आउट भेजते समय स्ट्रिंग भेजना है, लेते समय स्ट्रिंग को लेना है, ये मुझे रिस्पॉन्स भी उसका रिजल्ट में दिखाना है। मैंने सिर्फ 2-3 जगह पर चेंजेस किए हैं क्लाइंट के प्रोग्राम में। सबको समझ में आया क्या क्या चेंज किए मैंने सिर्फ यहाँ पर राइट टेक्स्ट से, मैंने यहाँ तक मेरा लॉजिक तो सेम था, बस मैंने जो रिस्पॉन्स मेरे को मिलेगा वो मेरा स्ट्रिंग में रहेंगे, तो वो मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ का मैंने ऑब्जेक्ट फंक्शन को चेंज कर दिया, और रिजल्ट भी वही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आउटपुट में थोड़ा क्लियर होने के लिए वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। बाकी आउटपुट स्ट्रीम विल वर्क एज इट इज, इनपुट स्ट्रीम विल वर्क एज इट इज, सॉकेट विल वर्क एज इट इज, बफर रीडर इज रिक्वायर्ड, सर्वर नेम इज रिक्वायर्ड, and each server port is required. All program logic will remain as it is. Okay, सबको समझ में आया ये हमने क्या क्या चेंज किए? यस Yes, sir. ओके। अभी सर्वर के ऊपर हमें क्या चेंज करना है? अभी सर्वर का पोर्ट नंबर तो हमें चेंज करना नहीं है, सर्वर सॉकेट को हमें चेंज करना नहीं है, वो तो चालू होना ही है। सॉकेट को हमें रन आउट करना है, हमें कुछ ना कुछ जो मिलने वाला है क्लाइंट के ऊपर से हमें उसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करना है। हमारा सिर्फ बिजनेस लॉजिक चेंज होने वाला है। नाउ दिस पार्ट विल बी चेंजिंग। नाउ व्हाट लॉजिक यू विल बी यूजिंग? मुझे वैल्यू को रिवर्स करना है। सो कैन एनीवन हेल्प मी टू हाउ टू रिवर्स दिस थिंग? यस, मैं देखता हूँ java.lang.string ऐसे नाम के जो फंक्शन है उसके अंदर रिवर्स नाम का फंक्शन है क्या, हम देखेंगे। मेरे ख्याल से नहीं है,
लोअर केस अपर केस, चलो हम इसको लोअर केस में भेजेंगे, जो भी है चलो इसको लोअर केस में कर देंगे। मेरे को अभी आप ही बताना है इसको रिवर्स कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। चलो हम इसको 2 लोअर केस या फिर 2 अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। सो विल कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स इनटू लोअर केस। ओके, तो कैसे करेंगे? नाउ दिस वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू, सो वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू dot 2 lower case, that's it. And I'm sending this, it is integer, so utf, and I'm sending this value variable over here, so c value. so मैंने यहाँ पर बिजनेस लॉजिक में सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है। मैंने इनपुट लेते समय टेक्स्ट में लिया था, आउटपुट देते समय टेक्स्ट में भेजने वाला, इसके वजह से मैंने यहाँ पर रीड यूटीएफ लिखा है, यहाँ पर राइट यूटीएफ लिखा है। बिजनेस लॉजिक में सिर्फ एक ही चीज़ है, मैंने उस वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट किया। अगर मैं कुछ भी डालूँ यहाँ पर तो वो ऑटोमेटिकली लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, राइट क्लिक रन। आई एम फर्स्ट रनिंग माई सर्वर, सो सर्वर इज स्टार्टेड। नाउ आई एम रनिंग दिस क्लाइंट प्रोग्राम दैट विल बी कनेक्टिंग टू द लोकल होस्ट विद द पोर्ट नंबर 2020। ये कुछ स्ट्रिंग लेगा, वो भेजेगा डेटा आउटपुट स्ट्रीम से, और कुछ लेने वाला है रिजल्ट बाय रीडिंग इट। So I am running this client program, server is started, client is there, so enter character। तो यहाँ पर मैं भेजता हूँ लोअर केस में भेज देता हूँ। अब हमने लोअर केस भेजा ना, तो आई विल बी राइटिंग इट इनटू अपर केस, so and I am pressing enter। okay, it is wait, it is sending something length, so ये वाइंड अप नहीं हुआ है, मुझे इसको सेव करना पड़ेगा पहला। यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड आई एम डिस्प्लेइंग वैल्यू। लॉजिक एग्जीक्यूटेड बाय सर्वर। देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों हमें ऐसी उल्टी वैल्यू आई है। all are terminated, so I'll start my server first, logic executed and data output. So now I'm running this program, server started, and I'm running this client again। see it is converting everything into lower case। okay, so ये पहले लोअर केस में था, वो वैसा ही रहा है, और जो आगे वाला पार्ट हमने अपर केस में लिखा था उसने उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया। हम सर्वर के ऊपर भी देखेंगे, देखो सर्वर ने भी खुद क्या किया है, उसको सबको लोअर केस में कन्वर्ट किया बिफोर टर्मिनेटिंग। सो आर यू क्लियर विद दिस? यस। So this is Yes, sir. okay, this type of question are asked in university. So this was the one example that is there. Now I am expecting that you should write a program like this. So this is first program I have done of echo. Second program we have done about length, that is counting the length of character. Third we have done with converting to lower case. Now fourth one, what you have to do is that you have to count vowels in the string। बोलो आता है किसको? हाउ टू काउंट वॉवल्स। मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर एक कैरेक्टर यहाँ से स्ट्रिंग को क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजूंगा, सर्वर विल बी काउंटिंग नंबर ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स आर व्हाट? वॉवल्स आर नथिंग बट द स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ए, ई, आई, ओ, यू, and again a, e,
इन लोअर केस ऑल्सो, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स है। अपर केस लोअर केस में जो भी के होगा उस वॉवल को मुझे काउंट करना है और मुझे पीछे काउंट में भेजना है कितने वॉवल्स है वो स्ट्रिंग के अंदर। जो आपने यहाँ पर भेजा है आई ओ, ये दो वॉवल्स है तो यहाँ पर काउंट होना चाहिए 2। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स। यस सर यस। स्ट्रिंग रिवर्स नहीं करके देखा ना। हाँ, स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए भी ये भी एक प्रोग्राम है। फिफ्थ वन, स्ट्रिंग रिवर्स, ये भी करना है आपको। और क्या करने कर सकते हैं आप? सिक्स्थ वन, एक नंबर लेना है और उस नंबर का आपको स्क्वायर और क्यूब भेजना है। सी, स्क्वायर और क्यूब दोनों भेजने हैं आपको, एक नहीं भेजना, दो अलग अलग वैल्यूज को भेजना है। ओके। सेवेंथ वन, नंबर को चेक करना है वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट, प्राइम नंबर है क्या नहीं। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? यस, विच नंबर इज प्राइम नंबर? टेल मी, लॉजिक भूल गए? ओके, एट्थ वन, आपको चेक करना है द नंबर इज इवन और ऑड, नंबर इज इवन और ऑड, यानी सर्वर्स की तरफ से आप भेजेंगे कोई नंबर, क्लाइंट विल बी सेंडिंग वन नंबर एंड सर्वर विल चेक वेदर इट इज इवन नंबर और ऑड नंबर, जो भी होगा उसने रिप्लाई में देना चाहिए। सो ये प्रोग्राम्स आपको करने पड़ेंगे। टुडे विल स्टॉप हियर, tomorrow this program I have completed, this program I have completed, this program I have completed। ये प्रोग्राम को आप ट्राई करो, अगर नहीं आया tomorrow session will be on this programming only। okay, so we'll have an ample number of examples of server socket programming and after that you will be very much comfortable of doing any type of program in examination। तो आपको सिंपल लगना चाहिए। okay, shall we stop now? Okay, sir. okay, shall we stop or shall we continue with an, क्योंकि अभी 5-6 मिनट बचे हैं। मैंने कल के प्रोग्राम्स ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ है पोर्टल के ऊपर। यू कैन राइट द प्रोग्राम एंड यू कैन ट्राई योर लॉजिक फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम ऑल्सो। रिवर्स का लॉजिक आप लगाओ, वॉवल्स काउंट करने का लॉजिक आप लगाओ, कोई नंबर का स्क्वायर और क्यूब कैसे हम भेज सकते हैं दोनों साथ में, या फिर सिर्फ स्क्वायर का लिखो फिर क्यूब को कैसे अलग तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। नंबर प्राइम नंबर है क्या नहीं वो चेक करना है। यस, पैलिंड्रोम है क्या नहीं ये भी हमारा रहा है। 8 9th वन, यू हैव टू चेक whether the string is palindrome or not, string is palindrome or not, ये भी आपको करना पड़ेगा। ये 9 प्रोग्राम्स हम बेसिकली करेंगे क्योंकि हमारा लॉजिक बढ़ाने के लिए। ओके, प्राइम नंबर का मैं नहीं करने वाला, ये आपको खुद ट्राई करना है बिकॉज यू हैव टू राइट योर ओन लॉजिक ऑफ राइटिंग चेकिंग द प्राइम नंबर। बाकी के मैं पैलिंड्रोम का आपको दे दूंगा, स्क्वायर क्यूब का दे दूंगा, रिवर्स का करूंगा, वॉवल्स का करूंगा, ये इवन ऑड का भी मैं करूंगा। बस आपको प्राइम, परफेक्ट नंबर ये भी ट्राई करो, परफेक्ट नंबर है क्या नहीं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्या नहीं, ये आपको खुद करना पड़ेगा एज एन एग्जाम्पल। वो जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्या नहीं वो चेक करना है और उसको रिप्लाई देना है। So okay, are you clear with this concept what we have done today? We have completed 3 different types of program today. Sorry, 2 types of program, that is we have counted the length of characters and we have converted the string into lowercase. We can convert it into uppercase also, no issue. You have to just change the functions. So 2 lowercase, that's so you can use 2 uppercase also. So there is one more function called as a 2 uppercase, जैसे यहाँ पर मैंने use किया था, यहाँ पर जैसे server के अंदर it was 2 lowercase, I can use 2 uppercase, so dot 2 uppercase, so you can convert into uppercase, you can convert into lowercase also, just one line syntax and you can get an output. Okay, so try this program at home। घर पे लिखते समय
खुद क्वेश्चन पूछो कि हम क्या लिख रहे हैं। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हम ये लाइन ऑफ सिंटेक्स क्यों लिख रहे हैं, तब तक आप इसको सर्वर सॉकेट की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ओके, आप खुद पूछो कि हमने ये क्यों लिखा है, हमने ये क्यों लिखा है, हमें लिखने का पर्पस क्या है, हमने ऐसा क्यों ऑब्जेक्ट बनाया सॉकेट का, हमने आउटपुट स्ट्रीम क्यों यूज़ किया, हमने इनपुट स्ट्रीम क्यों यूज़ किया। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होता है बच्चों को इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम में समझ में नहीं आता। अगर आपको ये इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम समझ में आया, आप कल जाके चैटिंग का एप्लीकेशन भी बनाना है। हमें कल जाके चैट सर्वर बनाना है, यानी क्लाइंट कुछ हाई भेजेगा सर्वर को, सर्वर विल सेंड इट हाई हेलो हाउ आर यू, यानी आप क्लाइंट और सर्वर के साथ दोनों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं कंटिन्यूसली और चैटिंग कर सकते हैं। एक चैट सर्वर आप बना सकते हैं, वो भी आपको बनाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर भी 10 मार्क के होते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको ये कंफर्टेबल हुआ तभी जाके हम चैटिंग का एप्लीकेशन बना सकते हैं, थ्रेडेड चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो टुमारो अगेन विल बी हैविंग 2-3 एग्जांपल्स एंड देन आफ्टर दैट विल बी एंटरिंग इनटू चैटिंग एप्लीकेशन। ओके, सो टिल देन गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे। Okay, sir. ओके, Okay, thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank